Good morning, students. In this video we will study about the chapter A Child is Born by Germaine Greer. So this chapter is for class 12. I am going to start this chapter. I will do line by line teaching. That is called the part of micro teaching. So my teaching is based upon the methods of micro teaching, in which each and every sentence will be taught, so that will be beneficial for you. So my dear friends, you are most welcome in this channel by me, Lalan Thakur. A Child is Born, Germaine Greer. Germaine Greer was born in 1939 and educated in Australia. Is a famous feminist writer. Feminist मतलब one who writes about feminist matters. स्त्रीवादी, नारीवादी लेखन, ये नारीवादी लेखिका थी. It means in this chapter we will study about the importance of women empowerment, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, women empowerment. So women empowerment is the main concern of this chapter. इस चैप्टर की मुख्य बात इस बात पर बेस्ड है, आधारित है कि महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए. इट मीन्स द राइटर, द फेमिनिस्ट राइटर will be talking about the problems of ladies, women, and then she will give the way. So is a famous feminist writer. In her well-known works, The Female Eunuch, Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility, and The Change, she explores the social and cultural aspects of life of women. इन्होंने स्त्रियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को छूने का प्रयास किया. She believes that socio-cultural practices are designed to suit male interests. At the same time they further subjugate women. इनका विश्वास था कि जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो व्यवहार है, वो पुरुषों के पक्ष में है और इससे नारी को दबा करके रखने की प्रेरणा मिलती है. द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी. इसमें स्पेलिंग मिस्टेक इस किताब में बहुत है. ये गवर्नमेंट का है तो हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन ये फॉर्म, तो ये फ्रॉम होना था FROM और छपा हुआ है FORM. तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इन पर भी ध्यान हम लोगों को देना चाहिए. सो फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी. ये क्वेश्चन याद करना चाहिए. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक द प्रेजेंट चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम? द नेम ऑफ द बुक इज ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी. So this is the name, Sex and Destiny, the Politics of Human Fertility. It explores, इसमें सर्च होता है, खोज है, तलाश है इसमें, the cultural peculiarities of the East and the West regarding child birth and parent-child relationship. Whenever we are going to talk about the problems of women facing in the world, then we should know that the main concern for ladies is childbirth, parent-child relationship, their economic aspects, their liberty, their political power. All these are the points of ladies which must get a focus. ये नारियों के उत्थान की बात अगर हम करेंगे, अगर पुरुष के बराबर उनको अधिकार देने की बात करेंगे, तो सबसे पहला इशू ये है कि उनके लाइफ में जो समस्याएं हैं उनको हमें हाईलाइट करना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा, उनको फोकस करना पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये समस्याएं उनके लाइफ में हैं। इन्हीं के कारण उनका लाइफ पुरुषों के बनस्पत दोयम दर्जे का साबित होता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट वीमेन प्ले ए मेजर रोल in the lives of the male, in the lives of the men. They play their roles in the form of sister, mother, daughter, wife, beloved, and so many. It means after having played so many roles, having got so much important place in the life of men, still some people consider that their lives are inferior to men. तब भी इतनी सारी भूमिकाओं में बखूबी अपनी भूमिका निभाने के बाद भी महिलाओं को यह सुनने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी सुनना होता है कि उनको पुरुषों के मुकाबले अधिकार कुछ कम मिले हैं। हालांकि आज के समाज में व्यक्ति महसूस करता है, हर लोग महसूस करता है कि स्त्री और पुरुष समाज में जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर है, न कोई कम है न कोई ज़्यादा, एक के बिना दूसरा अधूरा है। सो दिस इज द फैक्ट, बट हियर वी आर गोइंग टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ए वीमेन, एंड द मेन प्रॉब्लम इज अबाउट हाउ ए चाइल्ड इज बॉर्न। ये लेडीज़ को चाइल्ड बर्थ में सबसे मेजर रोल प्ले करना पड़ता है। इस स्टेटस में, इस भूमिका में लेडीज पुरुषों के मुकाबले बहुत आगे है, उसका रोल बहुत कठिन है, उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। तो हम उसकी जिम्मेवारी को, इस मैटर को हाईलाइट करके, उनकी समस्याओं को समझ करके उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। सो ए चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ ए चाइल्ड इज बॉर्न, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन दैट फ्रॉम दिस 15th of August, ये आने वाली 15 तारीख, इसी महीने की 15 तारीख 15th of August से मैं इसी इंग्लिश चैनल से, ये ललन ठाकुर टीचेज इंग्लिश, ये मेरा चैनल, और मैं इसी चैनल से इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा हूँ, ये पढ़ाता ही रहूँगा। आपके एग्जामिनेशन तक की तैयारी कराना मेरा उद्देश्य है, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराना भी मेरा उद्देश्य है फॉर इंग्लिश। बट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज़ फॉर हिंदी सब्जेक्ट ऑल्सो, हिंदी विषय के लिए भी इसी चैनल से, ललन ठाकुर टीचेज इंग्लिश, ये मेरा चैनल का नेम है, और इसी चैनल से आप हिंदी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर पाएंगे। तो उसके लिए भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। वह तारीख है 15 तारीख इसी महीने की, August 15th, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वीडियो अपलोडिंग फॉर हिंदी सब्जेक्ट। I hope that you will watch that, you will view that, and you will give your love and respect to those things as you are giving in this English class, in this English video. जैसा आपने इंग्लिश वीडियो को पसंद किया है, उसको लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसी तरह से आप उसको भी देखेंगे। एक बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपकी ज़रूरतों के लायक वह भी होगा ही। अगर नहीं होगा, नहीं देखेंगे, लेकिन अगर होगा तो उसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ इंतज़ार करें 15 तारीख तक आपके क्लास के लिए, और इसके अलावा और क्लास के लिए भी, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अंग्रेज़ी के साथ साथ मैं हिंदी की भी तैयारी कराऊंगा। तो निश्चित रूप से 2-3 वीडियो मैं हिंदी का भी अपलोड करूंगा रोज़, और जो ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये तो होता ही रहेगा इसी तरह से। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय इन्फॉर्मेशन, आई थिंक दैट यू हैव गॉट द पॉइंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेराइड। पारंपरिक समाजों में बच्चे का जन्म होना, उस समस्या को मैनेज करना, ये कई प्रकार से होता है। ये कई तरह के होते हैं और भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। ये बच्चे का जन्म से संबंधित मैनेजमेंट करना प्राचीन समाजों में, पारंपरिक समाजों में मेनी एंड वेराइड है। मेनी मतलब अनेक,
वेराइटी मतलब डिफरेंट। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures। मेरे दोस्तों, ये चाइल्ड बर्थ की समस्या पारंपरिक समाजों में सांस्कृतिक रूप से इस प्रकार से स्वीकार्य है कि सामूहिक जिम्मेवारी की भावना बनती है और इस तरह से बच्चा पैदा करने वाली महिला को का मनोवैज्ञानिक बोझ घट जाता है। Even though the potential catastrophes are alive in the memory of her community and the index of anxiety high, तब भी जो मेन समस्याएं हैं, कैटेस्ट्रोफ्स हैं, पोटेंशियल कैटेस्ट्रोफ्स हैं, मेन समस्याएं हैं, वो समाज की चिंताओं में शामिल रहती है। A ritual approach to pregnancy which hems the pregnant women about with taboos and prohibitions help make the anxiety manageable। ये गर्भवती महिला, ये धार्मिक संस्कार होते हैं गर्भधारण से संबंधित, और उससे जुड़ी हुई बातें महिलाओं को कुछ ऐसे टाबूस, संग्रह, संस्कार, पुरानी मान्यताएं, कुछ पाबंदियां ऐसी होती हैं कि उनकी चिंताएं ये बच्चा जनने से संबंधित, मैटरनिटी से संबंधित दूर हो जाती हैं। उनको सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन मिलता है। ए वीमेन हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशंस एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग द अननोन एट बे। इस प्रकार से जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी उसकी होती है। शी विल हैव अदर इन्फोर्समेंट्स, उसकी पास में दूसरी जिम्मेवारियां भी होती हैं, दूसरे एक्शंस भी होते हैं। फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर। बहुत सारी बातें दूसरे लोगों पर भी डिपेंड होती हैं, परिवार के जो उनको सपोर्ट करते हैं। प्राइमरीली हर हस्बैंड, सबसे पहला तो उसका पति होता है, देन हर किंग्स फॉक, तब उसके रिश्तेदार होते हैं, एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और समाज के दूसरे लोग। सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल। इसमें से बहुत सारे व्यवहार समझदारी से भरे होते हैं, उपयोगी होते हैं। अदर्स मैजिकल, बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस of security and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her। Some of these behaviors will be sensible and useful। कुछ व्यवहार इसमें अच्छे होते हैं, उपयोगी होते हैं, कुछ जादुई होते हैं। अब देखिए, यही पढ़ाई लिखाई की मान्यता है कि भाई सम ऑफ देम अदर्स आर मैजिकल, मैजिकल लिखा हुआ है, जादुई होते हैं। ये भी ये लिखने वाली लेखिका ये बोल सकती थी कि वो मीनिंगलेस होते हैं, अर्थहीन होते हैं, फालतू होते हैं, लेकिन नहीं, मैजिकल, ये कहने का तरीका, ये सुपर स्टाइल। प्रेगनेंसी नॉट, ये से साबित होता है कि वो महिला प्रेगनेंसी से संबंधित कार्य कर रही है, उसको संचालित कर रही है। दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, वो उसको कंडक्ट कर रही है। द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफाइलैक्सिस कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइव्स। तो इस प्रकार का लेसन पुरानी जो पत्नियां होती हैं, ओल्ड एजेड वाइव्स, टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी, वे प्रेगनेंसी गर्भधारण के विषय में कहानियाँ कहती हैं। इवन इन आवर ओन सुपर नेचुरल, सुपर रेशनल एंड कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल, भले ही उनका अपना लाइफ स्टाइल कन्फ्यूज रहता है, सुपर रेशनल रहता है, फिर भी ओल्ड लेडीज दूसरे को बताने का प्रयास करती है। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस, मेरे जान पहचान का एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा आदमी, ग्रेजुएट लेडीज, अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, उसे प्रेगनेंसी के दौरान जो अनुभव हुआ उस प्रेगनेंसी में गई, एज इफ इट वेयर हर टर्म असाइनमेंट, उन्होंने प्रेगनेंसी को टर्म असाइनमेंट के रूप में स्वीकार किया। मेटाकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, बहुत मेहनत से वे उससे संबंधित हर डेवलपमेंट को नोट करती थी।
clung to her prenatal exercise as a form of ritual observance as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth। वो प्री नेटल, अपना जो प्री नेटल जन्म से पहले जो अनुभव होता है, बच्चे को जन्म देने के पहले जो फीलिंग होता है लेडीज़ को, वो अनुभव धार्मिक परंपरा, धार्मिक रिचुअल ऑब्जर्वेंस, धार्मिक भावना से ऑब्जर्व करती थी और इस प्रकार से वो फिजिकल एक्सप्लॉयट ऑफ चाइल्ड बर्थ से भी अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास करती थी। शारीरिक शोषण होता है लेडीज़ का चाइल्ड बर्थ के नाम पर, तो ये होता ही है। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, वो चुपचाप उसको परफॉर्म करती है। एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर, और रोज़ इस संबंध में घर के दूसरे लोग हाई वाटर और हेल जैसा फीलिंग महसूस करते हैं। उस लेडीज़ को इतना केयरफुल होने के बाद भी हेल और हाई वाटर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हेल और हाई वाटर का मतलब है समस्याएं। इतना वो सीरियस रहती है, धार्मिक भावना से सोचती थी, लेकिन तब भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एज वेल शी ऑब्जर्व्ड द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल फॉर बेबी बिफोर द बर्थ वाज बैड लक। उनको भी इस अवधारणा को महसूस करना पड़ा जो सामाजिक थी कि बच्चे के जन्म के पहले उसके लिए कपड़े की व्यवस्था करना बैड लक होता है। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रेन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रीब और नैपकिन्स, और हमारे भगवान के बच्चे भी धरती पर आते हैं तो बिना नैपकिन्स के, बिना कपड़े के ही आते हैं, बिना पालना के आते हैं, यहाँ वो खाली हाथ आते हैं। कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन इनटू सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। इसलिए कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन, बहुत एफर्ट इस पर लगाया गया है यह समझने में, सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी, कि माँ को अपने बच्चे को एंजॉय करने का पूरा हक है। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ, लेकिन उनका जो प्रशिक्षण होता है अनमेडिकेटेड, बिना इलाज के, बिना मेडिसिन के चाइल्ड बर्थ का, फॉर मंथ्स, कई महीनों तक, इन द इवेंट द हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड टू बिलीव शी वाज इन सेकेंड स्टेज लेबर अनटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपीयर्ड। तो घर पर पूरी तैयारी हुई, इस प्रकार से हॉस्पिटल में जाने पर हॉस्पिटल वालों ने यह मानने से इनकार किया कि सेकेंड स्टेज में आ गया है लेबर प्रॉब्लम। लेबर प्रॉब्लम मतलब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस स्टेज को कहते हैं लेबर। कोई वीमेन लेबर में है मतलब वो उसको बच्चा होने वाला है, तो जब तक कि बच्चे का मुंह बाहर नहीं निकल जाता है तब तक डॉक्टरों को भी यकीन नहीं होता है कि वो बच्चा होने ही वाला है, अब सेकेंड स्टेज है उसका। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days। ब्रेस्ट फीडिंग के, स्तनपान के विषय में माँ और वो डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल के स्टाफ इतने अव्यवहारिक होते हैं कि उन्होंने 2 दिन में ही उस लेडीज़ को बच्चे के साथ डिस्चार्ज कर दिया। द बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड, तो इस प्रकार से घर पर जो बच्चा हुआ तो उसको डॉक्टर लोग बोले अनअटेंडेड, रिकॉर्ड में वह अनअटेंडेड हो गया। In non-technical societies, except for remarkable accidents, birth is always attended। लेकिन पारंपरिक समाजों में, नॉन टेक्निकल समाज में बच्चा ऐसे ही होता है, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, ऐसे ही होता है। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तभी बच्चा हॉस्पिटल जाता है, नहीं तो जनरली वो घर पर ही होता है। 3. क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स। जाहिर है, क्लियर है इस हाल में मदर मोर्टेलिटी और ये ज़्यादा होगा। जच्चा बच्चा, इन्फेंट एंड मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, वो ज़्यादा होता है पारंपरिक परिवारों में, समाजों में। बट इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द मेजॉरिटी हु लिव। लेकिन लेडीज़ को बच्चा कैसे होता है इसका अनुभव करना उसका भी राइट बनता है। वो अनुभव करे तो उसके लिए सारा पेन उसका अनुभव हो उसको, तो उसके लिए वो ट्रेडिशनल ही सही है। हॉस्पिटल में उसको इलाज कर देते हैं, उसको
मेडिकेटेड व्यवस्था करते हैं तो उसको ये एक्सपीरियंस से हम लोग वंचित करते हैं। माँ होने में जो सुख है, माँ होने में जो अनुभव है, इस अनुभव से उसको वंचित करते हैं जो उसका राइट है। So no one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if at all possible, nor that modern obstetric इलाज वाला व्यवस्था, मॉडर्न obstetric ये बच्चा से संबंधित जो इलाज होता है उसको बोलते हैं केयर, विच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग। आजकल हॉस्पिटल सेटिंग में डेवलप हो गया है मॉडर्न केयरिंग ऑफ चाइल्ड, हैज़ बीन एट लीस्ट पार्टली responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century। ये मेडिकल साइंस के आने से ये पिछले पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछली आधी शताब्दी से मृत्यु दर में कमी आई है, माता और जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु दर में। बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली परवर्स to question whether our present priority should be to reach minimum figures for prenatal ये prenatal होना चाहिए भाई, mortality at any price, when this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than the own survival। ये जान बचाने के नाम पर बहुत सारा एक्सपीरियंस जो होता है लेडीज़ को, उससे वंचित कर देना क्या सही है? राइटर ने ये सवाल उठाया। सच एज freedom to live their own lives their own way and to make individual choices in line with their own sense of values। उनको इस बात का हक है कि वो अपना सिलेक्शन करें, अपना चाइल्ड बर्थ का पूरा एक्सपीरियंस लेडीज करे, उसे में मेडिकल इलाज के नाम पर इससे वंचित करने का हक नहीं है। तो मृत्यु दर कंट्रोल करने के नाम पर हम लोग अनाप शनाप इलाज करते हैं और लेडीज़ को एक मात्र वस्तु बनाकर छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है। ये राइटर ने उदाहरण दिया, कहीं से कहाँ से, तो किसिंजर, शीला एंड जॉन ए डेविस, इनका लिखा हुआ था द प्लेस ऑफ बर्थ, ये लंदन में छपा था 1978 में। ओके, तो राइटर इज हियर गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर कटिंग्स ऑल्सो। ये अलग अलग जगह से एग्जाम्पल्स भी ये मोर्टेलिटी रेट में, चाइल्ड प्रॉब्लम में, ये सब क्या क्या है उस पर ये सब है। आफ्टर दैट इन मेनी सोसाइटीज़ वीमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेज एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ एंड द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर। बहुत सारे परिवारों में, समाज के परिवारों में लड़की शादी के पहले अपनी माँ के घर चली जाती है, शादी के बाद बच्चा होने के पहले। इट इज़ ए ट्रूइज्म of anthropology that such women do not become members of their new family until they have born a child। ये विश्वास है, एक बहुत सारे समाजों में ऐसी परंपरा है कि जब तक बच्चा नहीं हो जाए उस लड़की को, तो उसे वो स्थान घर में नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। If we consider that in such societies the marriage was quite likely to have been arranged, ऐसे परिवारों में शादी क्या होती है तो पारंपरिक होती है। It is understandable that the bride too longs for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she with her own mother। ऐसे परिवारों में लड़की चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसे बच्चा हो, ताकि जैसे उसको अपनी माँ से अटैचमेंट है वैसा अटैचमेंट उसको अपने बच्चे से हो सके। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोड्स, ऐसे स्वभावों का, ऐसे नियमों का, ऐसी जो प्रवृत्ति होती है मोड्स, द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन, ये पश्चिमी जो पाश्चात्य व्याख्या है इसका, इस नेचर का, वो ये है इज दैट दे आर बैकवर्ड, क्रूएल एंड रॉन्ग। ऐसा व्यवहार करने वाली महिलाएं वो पिछड़ी होती हैं, क्रूएल होती हैं, एंड दे आर रॉन्ग। अल्टीमेटली दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग। इट इज एज्यूम्ड दैट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउजेज आर परफंक्टरी। ये माना जाता है कि लेडीज़ के, ये पति पत्नी के बीच में जो सेक्सुअल संबंध होते हैं वो क्या होता है, उसको कहिए आप, औपचारिक होते हैं। वो करना है तो करना है, वो बंधा हुआ है कि यहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा चाइल्ड बर्थ के लिए, तो वो होगा।
एंड एक्सप्लॉयटेटिव, इसमें शोषण भी होता है, एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, और इसका मतलब है कि सभी जो सासू माँ होती है, मदर्स इन लॉ, आर अनजस्ट, वो बेईमान होती हैं, विंडिक्टिव होती हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट who are not chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silent opposition when participating in international fora conducted in languages which they cannot speak with fluency। ये ऐसी महिलाएं भी होती हैं। इस नारीवादी आंदोलन की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारी महिलाएं अतिवादी नहीं हैं जो, तो चुप रह जाती हैं। वो ये सीखना भी चाहती हैं कि समाज में क्या हो रहा है, तो अवसर आने पर वो बोलने से वंचित हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनको ऐसी भाषा में शामिल होना होता है सेमिनार वगैरह में जहाँ की भाषा उनको समझ में नहीं आती या जिसमें उनको फ्लुएंसी नहीं होती है, दिक्कत होती है। तो ये लेडीज़ को अपनी अभिव्यक्ति मंचों पर देने में प्रॉब्लम होता है कि दूसरी भाषा में सेमिनार्स हो रहे हैं तो वहाँ अपनी बात कहना है और कहने में भाषा में प्रॉब्लम है तो वो कह नहीं पाती, चुप रह जाती है। सो वीमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सूडानीज गवर्नमेंट टोल्ड मी दैट दे हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। सूडान के सरकार से आई एक महिला ने मुझे बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना छोड़ चुकी है। क्यों? इवन दो द ट्रिप्स वेयर ट्रीमेंडस ट्रीट, भले ही आने जाने में अच्छा मिलता है, आमदनी अच्छी होती है, अच्छी व्यवस्था होती है, बिकॉज दे वेयर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइव्स इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। इन मंचों पर भाषा तो एक प्रॉब्लम है ही, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो भी पुरुष वक्ता आते हैं वो लेडीज़ की जो समस्या है उसको बोलते रहते हैं, वो लेडीज़ को बोलने नहीं देना चाहते या लेडीज़ की बात को सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ सहानुभूति व्यक्त करते हैं। वो बहुत चाहते हैं कि लेडीज़ एम्पावरमेंट हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, वो लेडीज़ को कितना वो लेडीज़ को दुख है इस पर वो हाईलाइट करते हैं, भाषण देते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन लेडीज़ क्या कहती है सही माने में ये सुनना और उस पर अमल करना ये कॉन्फ्रेंसेज में नहीं होते हैं। जाहिर है कि मेल डोमिनेशन है तो ये लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है। तो सूडान की महिला ने, लेखिका को ये बात बताई कि इसीलिए सेमिनार्स वगैरह में जाना छोड़ चुकी है कि लोग वहाँ वस्तु ही समझते हैं, लोग मैटर हाईलाइट करते हैं, लोग बोलते हैं, बोलने देना नहीं चाहते हैं, लोग सुनाते हैं, अपना कमेंट करते हैं, लेडीज़ की बात को सुनते नहीं हैं, उसको उस रूप में तरजीह नहीं देते हैं। दस वी इन द वेस्ट वुड रिगार्ड इट एज आउटरेजियस दैट ए country own name, that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has born it, although of course most of us do not protest against the sinking of the women's lineage under her husband's name at marriage। ये पश्चिम की जो महिला होगी उसको बर्दाश्त फालतू होता है, बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है कि शादी के बाद या बच्चा होने के बाद लेडीज़ का नामकरण जो होता है बच्चे का वो पुरुष के नाम पर होता है। घर में जो मेल डोमिनेशन है पिता के नाम पर होता है। ये बहुत लोग इसको स्वीकार कर जाते हैं कि स्त्री का नाम ही मिट जाता है, पुरुष के नाम से ही जानी जाती है महिला। तो ये लेकिन पश्चिम में ये बात को आउटरेजियस माना जाता है, ये एंगर का मुद्दा है। In many traditional societies, the relationship between mother and child is born is more important than the relationship between husband and wife। ये बहुत सारे समाजों में माँ और बच्चे का संबंध हस्बैंड वाइफ के संबंध से ज़्यादा मजबूत होता है। In some indeed the child's relationship with the rest of his family is as important or even more important than either। और किसी परिवार में तो बच्चे माता पिता का संबंध ये परिवार के और लोगों के सदस्य के साथ और फैमिली के और मेंबर्स के साथ भी वैसा ही रहता है, बराबरी का। तो ये आपने देखा। आफ्टर दैट ये फिर एग्जाम्पल है, ए नंबर ऑफ सोशल यूजेज में स्ट्रेस द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विथ द रेस्ट ऑफ हिज किन ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विथ हिज पेरेंट्स। ए नंबर ऑफ सोशल यूजेज, बहुत सारे सामाजिक संस्कार में स्ट्रेस जोड़ देते हैं, जोड़ दे सकते हैं इस बात पर,
द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विथ द रेस्ट ऑफ हिज किन, कि बच्चे का संबंध परिवार के अन्य लोगों के साथ एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विथ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिज आंट्स एंड अंकल्स मे बी परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेसी विथ हिम इन पब्लिक दैन हिज पेरेंट्स, उसके अंकल या आंट समाज में, परिवार में, पब्लिक के बीच पेरेंट्स से ज़्यादा करीब होते हैं बच्चे के साथ। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन अफ्रीका एंड इंडिया द बायोलॉजिकल फैमिली इज डेलिबरेटली वीकेंड, ये अफ्रीका में और इंडिया में भी बहुत फैमिली में ये बायोलॉजिकल फैमिली से ज़्यादा महत्व दिया जाता है फैमिली के और लोगों को। बाई इन्फोर्स्ड ऑब्स्टिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली, ये इसका बेसिस ये है कि परिवार बड़ा हो, आपसी में जो रिश्ता है, आपस में रिश्ता परिवार में वो मजबूत हो। दस चिल्ड्रेन आर नॉट बॉर्न एट द whim ऑफ द पेरेंट्स, इस प्रकार से बच्चे पेरेंट्स की मर्जी से पैदा नहीं होते, बट इन रिस्पॉन्स टू ए ब्रॉडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप, पूरा समाज इस बात का डिमांड करता है, इसलिए बच्चा पैदा होता है। द इकोनॉमिक रेशनैलिटी ऑफ हाई फर्टिलिटी एंड इन्वेस्टिगेशन इलस्ट्रेटेड विथ नाइजीरियन सर्वे डाटा पॉपुलेशन स्टडीज़ वॉल्यूम 31 नंबर 1 1976 में ये छपा था, वहाँ से लाया गया है। सो ये अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि चाइल्ड बर्थ पर ये टॉपिक है, ये लेडीज़ का विचार है कि उसको आज़ादी की बात होनी चाहिए, उसको मेडिकल इलाज के नाम पर भी उसकी आज़ादी खंडित नहीं होनी चाहिए, माँ बनने का हक उसका स्पेशल है, इसका उसको अनुभव करने देना भी चाहिए। ये पारंपरिक समाज में क्या होता है कि सहयोग से होता है, कल्चरल और सोशल बॉन्डिंग्स होते हैं और उसमें परिवार के सारे लोग मिलजुल के सहयोग करते हैं। लेकिन और पूरा जो पश्चिम वाला है, मेडिकल है, पूरा जो मॉडर्न है, उसमें लेडीज़ अलग थलग महसूस करती है अपने आप को। ये सारा कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट पर ये चाइल्ड बर्थ से संबंधित ये चैप्टर आपका है, जिसमें पश्चिम कल्चर और भारतीय कल्चर, ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों में पर कमेंट है चाइल्ड बर्थ के विषय में, क्या उनका ओपिनियन है। तो ये भारत वाले में, वेस्ट ईस्टर्न वाले में होता है कि पारिवारिक सपोर्ट रहता है, सांस्कृतिक उसमें एक लगाव होता है, लेकिन वेस्टर्न जो है वो पूर्णतः ये मेडिकल या हॉस्पिटल पर बेस्ड रहता है। तो ये दोनों का अंतर भी है। तो ये अब तक हम लोगों ने देखा, ये आपका। अब देखते हैं कि इसके विषय में इसके आगे क्वेश्चंस क्या हैं, इसको ज़रा हल करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स। जो स्टेटमेंट है ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वीमेन हैज़ टू फॉलो द कन्वेंशनल प्रोसीजर ऑफ चाइल्ड बर्थ, ट्रू। इवन taboos and prohibitions help to manage anxiety, true. We Western women suffer mostly because they have to manage everything on their own, true. In traditional society, childbirth is a family affair, true. The family support and conventional procedure lessen the mother-infant mortality, true. Freedom to live our own lives is more important than prenatal mortality, true. Western people do not think that all mothers-in-law are unjust and vindictive, false। ये आपको false है, F लिखा है, ये F है। Silent opposition in international conferences is not a major difficulty in the way of feminist, नहीं, ये false है। In many traditional societies, the relation between mother and child is more important than the between husband and wife, true. Okay, next. How are the ways of managing childbirth in traditional society useful? The managing of childbirth in traditional societies is based upon social and cultural bondings. It is based upon the cooperation given by family. The childbirth is taken the responsibility of the whole family. So it is able to remove psychological and social burden from the mind of the mother. Second, a pregnant woman in a traditional society does not feel that she is alone. Why? Yes, same answer. A pregnant woman in a traditional society does not feel that she is alone because family supports her. Full family
gives her support, and in this way she never feels alone. Third, what is the superstition associated with acquiring new clothes and instruments for baby before the birth? The superstition associated with acquiring new clothes and instruments for baby before the birth is that it is a symbol of bad luck. बच्चे के जन्म के पहले कपड़ा वगैरह जमा करना, इंस्ट्रूमेंट जमा करना, ये बैड लक का सिंबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अंधविश्वास है. दिस इज कॉल्ड सुपरस्टिशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ पार्ट 1. इट हैज़ बिकम वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा हो गया. सो बाकी जो बच गया दैट विल बी इन सेकेंड पार्ट. सो प्लीज़ स्टार्ट व्यूइंग. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.